So hello students, welcome to the video lecture of subject Water Resources Engineering. So today's topic is surveys for irrigation project and data collection. Then vision of institute, excellence in technical education to empower youth. Then mission, impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizens. Then strengthen industry institute interaction. Then vision and mission of the department. Vision, to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Then mission, imparting the modern technical skills as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers. Effective implementation of teaching learning process to benefit students. Then course outcome, estimate crop water requirement of a command area and capacity of canals. Then unit outcome, undertake or conduct survey for given irrigation project. Then program outcomes mapped are basic discipline and knowledge, problem analysis, design and development of solution, engineering tools, experimentation and testing, engineering practices for society, sustainability and environment, project management and lifelong learning. So need of survey for irrigation project. So why the survey is required for irrigation project? To find out whether the project is required or not in that particular area. So for construction of an irrigation project like dams, barrage or weir requires surveying of whole area. Then surveying for an irrigation project is done to understand if the dam or other irrigation construction is required or not. The area should benefit to its larger extent when the completion of irrigation structure is done. So irrigation project मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होगी इसमें, इसीलिए प्रॉपर सर्वे होना ज़रूरी होता है. इसीलिए सर्वे प्रोजेक्ट बनाने से पहले सर्वे करना ज़रूरी है. देन सर्वेइंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इरिगेशन प्रोजेक्ट. तो कौन कौन से सर्वे करना ज़रूरी है? सो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है? First, examine the water availability, then examine the topography, selection of site, river gauging, marking of cultivable commanded area, then marking of tentative alignment, reconnaissance survey, preliminary survey, final location survey and final survey report. So we will see all these things in detail. So first is एग्जामिनेशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. सो कौन सा वाटर अवेलेबल है या कितने एक्सटेंट में वाटर अवेलेबल है ये हमको चेक करना ज़रूरी है. मतलब रिवर है तो रिवर में कितना वाटर रहता है, ड्राई सीज़न में कितना, रेनी सीज़न में कितना, ये सारा कुछ चेक करना ज़रूरी होता है. सो टू कंस्ट्रक्ट एन इरिगेशन प्रोजेक्ट वेदर इट इज़ अ डैम और वियर और बैराज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जर्वेशन शुड बी the presence of water and its availability. Then some important observations are, if there is any river flowing in that area, we should know the type of river, whether it is perennial or inundation, मतलब साल भर चलने वाली या seasonal. Then if it is perennial, then the water is available throughout the year. But if it is inundation river, then study of its प्रीवियस ईयरली डिस्चार्जेस इज़ नेसेसरी. मतलब पिछले सालों में उसमें कितना वाटर अवेलेबल रहा करता था, ये सारा कुछ हमको चेकआउट करना है. देन रिवर शुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन दैट एरिया. जो भी रिवर है वो जिस एरिया में हम है वो रिवर उस एरिया को पूरा सर्व करती होनी चाहिए. देन सूटेबल साइट शुड बी अवेलेबल टू कंस्ट्रक्शन एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट. तो सूटेबल साइट अवेलेबल करने के लिए हमको सर्वे करना होता है. देन एग्जामिन टोपोग्राफी,
After investigating the water availability, topography map of area is studied. The study is more useful when marking the tentative alignment of irrigation project. Then behavioral of agricultural lands are examined in this stage. तो टोपोग्राफी मतलब सॉइल किस टाइप का है, वहाँ पर लैंड किस टाइप का है, ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी है. सॉइल में कुछ मतलब फर्टिलाइज्ड सॉइल है या नहीं, ये सब प्रॉपरली चेक हो जाना चाहिए. Then selection of construction site. When plenty of water or major source of water is available, then the location to construction and irrigation project is selected. Then selection of site is done by considering the following points. कुछ points है जिनको consider करके ही site selection किया जाता है. Soil survey करना ज़रूरी है, मतलब बोरिंग और पाइल टेस्टिंग करके फाउंडेशन डेप्थ चेक करना ज़रूरी है, वो हो गया सॉइल सर्वे. देन सफिशिएंट बेसिन एरिया शुड बी अवेलेबल एंड कैपेसिटी मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट. देन साइट शुड बी इजीली एसेसिबल एंड मटेरियल एंड लेबर शुड बी रेडीली अवेलेबल. नियर बाय एरिया में ही मटेरियल और लेबर अवेलेबल होना चाहिए प्रोजेक्ट के विद इन द विजिनिटी. देन साइट जो है वो ऐसा हो कि वहाँ रोड भी हो जहाँ साइट तक इजीली पहुँचा जा सके. द अलाउेबल बेड स्लोप शुड बी मेंटेन एज फार एज पॉसिबल इन द कैनाल. द स्ट्रक्चर शुड नॉट सबमर्ज वैल्यूएबल लैंड्स एंड एरिया. अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो कुछ महंगे ज़मीन होगी और एरिया होगा, वो पानी के अंदर आना नहीं चाहिए. अगर आ भी गया तो उसका कॉम्पेंसेशन पर्टिकुलर फार्मर्स या जो भी ओनर है उसको मिलना ज़रूरी है. देन रिवर गेजिंग. रिवर गेजिंग इज़ मेजरिंग ऑफ वाटर डिस्चार्ज एट पॉइंट. मतलब रिवर में कितना वाटर अवेलेबल होता है उसको बोला जाता है रिवर गेजिंग. द पॉइंट इन दिस केस वेयर रिवर गेजिंग इज़ कंडक्टेड इज़ द साइट सिलेक्टेड फॉर प्रोजेक्ट. आफ्टर रिवर गेजिंग फॉलोइंग डिटेल्स आर ऑब्टेन्ड. तो रिवर गेजिंग करने के बाद हमको ये चीज़ें पता चलती है. द डिस्चार्ज ऑफ रिवर इज़ कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस एंड द ईयरली डिस्चार्ज रिकॉर्डेड आर स्टडीड. देन द हाई फ्लड लेवल एंड लो वाटर लेवल आर रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन द ओल्ड ऑब्जर्वेशंस. तो हाई फ्लड लेवल और लो वाटर लेवल दोनों का हमको रिकॉर्ड पता चल जाता है. Then to find out the possible silting of river bed, silt analysis is conducted and manorial value of fine silt is recorded. मतलब जो सॉइल जो बह के आता है पानी के साथ उसका कितना सेटलमेंट होता है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में. एक्चुअली जो सिल्टिंग होता है उससे डैम पे लोड आता है, तो वो कम से कम होना चाहिए, वो भी हमको चेक करना ज़रूरी है. तो वो रिवर गेजिंग में चेक हो जाता है. Then marking of tentative alignment. After the selection of site for irrigation structure, it is time to select the tentative alignments for canal or branch canals. Alignment select करना ज़रूरी है. These alignments should be marked in topographical and contour maps. Marking should be done by following considerations. The alignment mark should cover the whole area when it is cut into canal. मतलब जो alignment होता है जिसके थ्रू डैम प्रोजेक्ट बनने वाला है, इट शुड कवर द होल एरिया. सारा एरिया कवर हो जाना चाहिए. द अलाइनमेंट शुड मिनिमाइज द अर्थ फिलिंग एंड कटिंग कॉस्ट. मतलब कहीं गड्ढा होगा तो वहाँ पे सॉइल फिल करना पड़ेगा, कहीं अगर एम्बैंकमेंट टाइप है तो वहाँ से कटिंग करना पड़ेगा. तो ये जो कॉस्ट है ये मिनिमम होनी चाहिए. अलाइनमेंट ऐसा ही सिलेक्ट हो जिसमें अर्थ वर्क कम लगे, मतलब कटिंग और फिलिंग, सॉइल फिलिंग और सॉइल कटिंग कम से कम हो. देन इट शुड नॉट पास थ्रू वैल्यूएबल एग्रीकल्चरल लैंड्स, रिलीजियस प्लेसेस एक्सेट्रा. तो जब भी हम अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे तो वो एग्रीकल्चरल लैंड्स और रिलीजियस प्लेसेस अवॉइड करके ही चलना है. देन इट शुड क्रॉस रिवर्स, रोड, रेल्स एक्सेट्रा परपेंडिकुलरली. मतलब रोडवेज, रोड अगर है, रिवर अगर है, रेल्स अगर है तो ये परपेंडिकुलरली क्रॉस होने चाहिए अलाइनमेंट के, हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट में.
Then marking of cultivable commanded area, which is mainly fit for cultivation of crops. So area under this category should be marked on the topographic map. So the construction should not disturb or damage this area, and required demand discharge can also be known. Then reconnaissance survey of irrigation project. तो रिकनाइसेंस सर्वे मतलब एक्चुअली होता क्या है कि ये रफ टाइप ऑफ सर्वे है। रफ सर्वे किया जाता है कि रफ सर्वे करने से क्या होगा, इंजीनियर को एक्चुअली नंबर ऑफ साइट्स पता चलेंगी इरिगेशन के लिए, जहां हमको वाटर स्टोर किया जा सकता है या प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है इरिगेशन। तो नंबर ऑफ साइट्स उनको स्टडी करके मिलेंगी। तो एक रफ सर्वे किया जाता है जिसको बोला जाता है रिकनाइसेंस सर्वे। तो रिकनाइसेंस सर्वे में हम 3-4 साइट्स का सर्वे कर सकते हैं, और जो बेस्ट पॉसिबल है उसका फिर प्रिलिमिनरी सर्वे करेंगे। सो सर्वे प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स: नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप अलोंग द अलाइनमेंट, magnetic bearing of lines of the traverse along the alignment are recorded. Alignment passing through religious places, valuable lands are eliminated. If they are unavoidable, they are marked as special areas and suitable compensation is provided to that particular owner. The nature of ground up to a distance of 100 meter on both sides of alignment are noted. Then alignment cutting the crossing perpendicularly are also noted. Then distance are measured by pacing. Past record of floods in that area are noted. Suitable cross drainage work should be noted. If there is any river across the alignment should cut the river across its shortest route. Then preliminary survey of irrigation project. After completion of reconnaissance survey, a good alignment is selected and they are allowed to conduct preliminary survey. तो reconnaissance survey में हमको क्या मिलेगा, 3-4 अलाइनमेंट की साइट मिलेगी, जिसमें हमको एक बेस्ट जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा 4-5 में से, और फिर उसका प्रिलिमिनरी सर्वे करना पड़ेगा। प्रिलिमिनरी सर्वे किए जाते हैं इंजीनियरिंग सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे और जियोलॉजिकल सर्वे। तो इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजिकल और जियोलॉजिकल ये तीनों टाइप के सर्वे उस पर्टिकुलर साइट पे जो रिकनाइसेंस सर्वे में हमने फाइनल की है उसका ये तीनों सर्वे किए जाते हैं। देन इंजीनियरिंग सर्वे में वेरियस टाइप्स ऑफ सर्वे आते हैं, जैसे प्लेन टेबल सर्वे, ट्रैवर्स सर्वे, एरियल एंड टोपोग्राफिक सर्वे, फोटोग्राफिक सर्वे आर कैरिड आउट। तो डाटा कलेक्टेड फॉर इंजीनियरिंग सर्वे, द साइज और एरिया अंडर कल्टिवेशन, अंडर फॉरेस्ट एंड अंडर हैबिटेशन इज calculated. The type of soil is find out, existing pond and size, their capacities is find out. Then river survey, flood levels if available from past record if any. Then slope of hill is checked, dam site details are checked. Then reservoir contour plan, then site for spillway and alignment of approach and tail channels is recorded. Approach road near the project site is recorded. Then next is hydrological survey. So whenever any storage work is constructed, it is very essential to ascertain that required amount of water will be available at the site for storage. मतलब हाइड्रोलॉजिकल सर्वे मतलब टोटली हाइड्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जब भी हम इरिगेशन प्रोजेक्ट बना रहे वहाँ पर हमको मेन चीज़ क्या है, हमको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल कितना है उस स्टोरेज के लिए, वो पहले चेक करना पड़ता है। सो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे इज ऑफ कैचमेंट एरिया इज डन टू कलेक्ट द डाटा फॉर डिटरमाइनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर द रिजर्वायर. So it is necessary to study runoff type and to determine available storage, to determine maximum discharge, determination of hydrograph of worst flood, to determine spillway capacity and its design. The next है geological surveys. Geological survey or exploration is done in two ways.
सरफेस एक्सप्लोरेशन एंड सरफेस मैपिंग, जो सब डिटेल सॉइल का, कैचमेंट एरिया जो भी है सारा डिटेल सरफेस सर्वे, और दूसरा है सब सरफेस एक्सप्लोरेशन। तो हमने देखा कि सरफेस सर्वे में क्या क्या किया जाता है। अभी तक जो था वो सरफेस सर्वे ही था, लेकिन सब सरफेस का भी एक्सप्लोरेशन करना ज़रूरी है। तो सब सरफेस में क्या आता है, वाटर टाइटनेस ऑफ द बेसिन, पर्टिकुलर एरिया में अंडरग्राउंड वाटर कितना अवेलेबल रहता है वो चेक करना है। देन स्टेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन फॉर द डैम, मतलब नीचे अंडरग्राउंड में कौन सा टाइप ऑफ सॉइल है, रॉकी है या सॉफ्ट सॉइल है, तो फाउंडेशन कौन सा टाइप रहेगा ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन डिटेक्शन ऑफ फॉल्टी स्ट्रक्चर इन बेसिन, कुछ अर्थक्वेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स। देन डिटेक्शन एंड डेप्थ ऑफ ओवरबर्डन। देन ग्राउंड वाटर कंडीशंस इन द रीजन, ग्राउंड वाटर की कंडीशन क्या है। देन लोकेशन ऑफ क्वेरी साइट्स फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मतलब जहाँ पर हमको डैम बनाना है उसके आजू बाजू में कुछ ऐसे साइट्स है क्या जहाँ से हमको कंस्ट्रक्शन मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएगा। देन डिटेल सर्वे और फाइनल लोकेशन सर्वे। सो आफ्टर प्रिलिमिनरी सर्वे मोस्ट इकोनॉमिकल अलाइनमेंट अमंग ऑल इज सिलेक्टेड एंड फाइनल लोकेशन सर्वे इज कंडक्टेड। तो प्रिलिमिनरी सर्वे में जो किए जाते हैं उसमें जो मोस्ट इकोनॉमिकल है वो साइट हमको सिलेक्ट करना है डिटेल सर्वे के लिए, उस साइट का डिटेल सर्वे करना पड़ेगा। तो डिटेल सर्वे में कौन कौन से स्टेप्स अवेलेबल इन्वॉल्व है। सेंटर लाइन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट इज मार्क विथ पिलर्स एंड पेक, जो भी साइट हमने फाइनलाइज की है उसका सेंटर लाइन मार्क करना पड़ेगा या फाइनल अलाइनमेंट बोलेंगे उसको। देन विड्थ ऑफ अलाइनमेंट ऑल्सो मार्क बाय द पिलर्स। Similarly, for branch canal also pillars are marked. Final eligible properties for compensation are recorded. Then final survey report of irrigation project. तो final survey report फिर बनाया जाता है। तो it is the last stage of whole process and in this stage a report should be prepared with the details of final alignment. So जो भी रिपोर्ट है वो हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट की जाती है फॉर अप्रूवल ऑफ एन इरिगेशन प्रोजेक्ट। सो उस रिपोर्ट में क्या क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द इरिगेशन प्रोजेक्ट, देन जस्टिफिकेशन एंड नेसेसिटी ऑफ प्रोजेक्ट, जस्टिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट, देन डिटेल एस्टिमेट शीट फॉर अर्थवर्क कॉम्पेंसेशन, हेडवर्क एक्सेट्रा, देन डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोजेक्ट, देन बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट, देन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, देन फाइनल सर्वे रिपोर्ट ऑफ इरिगेशन। तो फॉलोइंग मैप भी, उसके साथ कुछ मैप भी है जो सबमिट करने पड़ते हैं, जो है जनरल मैप ऑफ एरिया थ्रू विच कैनाल पासेस, रूट सर्वे मैप, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अलाइनमेंट, क्रॉस सेक्शन ऑफ अलाइनमेंट, कंटूर मैप ऑफ अलाइनमेंट, ड्राइंग ऑफ डैम, हेडवर्क, क्रॉस ड्रेनेज वर्क एक्सेट्रा, then summary. So in this video lecture today we have seen what is the necessity of survey for the irrigation project, then various survey to be conducted, then report of irrigation project to get the approval of the project, then assignment question. So explain the various survey to be conducted for irrigation project, enlist the data to be collected for the same. So this is all about today's video lecture. Thank you.